in the medical college. Number two, we have got the government facilities in the UHM hospital. Number two, we have got the private facilities, those who want to get it done privately, that is available in Gyan pathology and Paliwal pathology. ठीक है, वो सवाल अभी डॉक्टर पांडे से हम पूछ लेंगे। डॉक्टर संतोष, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर नगर और आसपास के इलाके में भी काफ़ी एक्टिव केसेज हैं, किस तरह से वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं? अब देखिए, कंट्रोल का ऐसा है, जैसा कि बार बार आप लोग भी रिपीट कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स रिपीट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पब्लिक उसको फॉलो नहीं करती है। और ये रूल ऑफ थंब 3 है। Number 1, the patient must have maintained distancing. Number 2, patient must put the mask. Number 3, that the patient should have, apart from the distancing, apart from the putting on the mask, a regular, proper hand washing at least for 22 seconds. This is the usual routine. But unfortunately, when I go to the rounds, I find that so many attendants, even in small children, they are without the mask. It has been repeatedly said that please don't bring the children, please put on the mask. Everywhere it is written. Our guard and ball boy, they always tell, but the thing is that it is very unfortunate and it is not being followed. So far I am concerned, sometimes even I get angry. But the thing is that how long you are going to check like this? So you have some media that the public must follow it very strictly, because of the Kanpur in the last few days, our death mortality and even the detected positive cases have increased a lot. That which was for about, say, 15 days back, only 7 or 10. Now it has gone to 181. It's a real explosion. Similarly, the cases, every day the cases are coming positive around 150 to 200, like that. And here the mass orientation of the public is very important. And I think that the government, apart from the things the government is using, must be, I've suggested even in my hospital board, that some loudspeakers, some regular announcement must be made. And that should not only be limited to the hospital campus, but in the vicinity. I mean, you'll be surprised to know the vicinity in which my hospital, Kulwanti Hospital, is there, Kakadeo is there. It has been declared yesterday as one of the hot spots. ठीक है, so that is the gravity of the situation we are facing. ठीक है। मंजू हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रेटर नोएडा से। डॉक्टर पांडे, आप सवाल सुनिएगा इनका। मंजू, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। हेलो। नमस्कार, बोलिए। आई एम लिसनिंग यू। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे घर में ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, तो एक नॉर्मल बॉडी का कितना होना चाहिए, और क्या ये बच्चों का, एडल्ट का और सीनियर सिटीजन का क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी में डिफरेंस रहता है। ए पॉजिटिव, सो मच ऑफ द वायरल लोड इज पॉजिटिव. Today the viral load is there, but it is not giving the positive result. But we can't say. Sometimes we find that they are again positive. So we have to have these patients in isolation or quarantine. ठीक है, डॉक्टर पांडे, इनका जवाब दे दीजिए मंजू का। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, डॉक्टर हिमांशु भी कह रहे थे कि कैसे पता करें कि कौन हाई रिस्क है, कौन नहीं है। एक छोटा सा ऑक्सीमेट्री प्रोब होती है जो इन्हें मंजू जी ने पूछा ग्रेटर नोएडा से। नॉर्मल आदमी को अगर आप लगाएंगे उसको रेस्टिंग पे बैठ के, इट शुड बी 97, 98, इनफैक्ट कई बार हमारा भी 99 तक भी आता है। अगर आपका बिना किसी रीजन के 95 के नीचे जा रहा है और आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, एक 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं हम लोग, कि आप 6 मिनट चलिए और आपकी अगर सांस फूले, आप प्रोब लगा के देखिए। अगर 6 मिनट चलने के बाद आपका प्रोब में ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 93 से नीचे जा रहा है, आई थिंक आपको चिंता करने की जरूरत है। यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू हैव एनी सस्पिशन ऑफ कोविड-19। तो हम लोग अपने पेशेंट को कहते हैं भाई, आप घर में किसी को कोविड हो गया, ये जरूर खरीद के रखो।
रही बात सैचुरेशन की, तो बच्चों का, एडल्ट का और आई मीन एडवांस एज में सैचुरेशन सबका क्राइटेरिया एक ही यूज कर दे। इट्स वंडरफुल डिवाइस फॉर होम मॉनिटरिंग। ठीक है। डॉक्टर हिमांशु, एक सवाल आ रहा है फेसबुक से। सवाल ये है शांति मल्होत्रा का, ये लुधियाना से हैं। इनका कहना है कि इनकी उम्र 73 साल है और नसल कॉन्जेशन इनको रहता है फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ। इज इट ए कॉज ऑफ वरी? व्हाट मेडिसिन शुड आई टेक? एनी होम रेमेडी फॉर सच कंडीशन? One of the things that's important is अगर वो 2 महीने से चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी मोर पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस और सर्टेन अदर कंडीशंस रादर देन कोविड। कोविड में आपका नेजल कंजेशन यूजुअली 7 to 10 डेज इस तरह से रहता है। अगर ये 2 महीने से उनको अगर नाक में कंजेशन हो रहा है तो वी वुड थिंक ऑफ अदर कॉजेस। सिर्फ नेजल कंजेशन है तो जैसे हम लोग कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस हुआ, या सर्टेन नेजल जो हम लोग नोज के आसपास की जो डिजीजेस होती हैं उनको हम लोग सस्पेक्ट करेंगे। वी वुड नॉट सस्पेक्ट ऑफ कोविड। उसके लिए बेस्ट तो यही होता है, हमेशा नेजल कंजेशन के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए वी सजेस्ट स्टीम इनहेलेशंस, कीपिंग अवॉइडिंग एलर्जेंस। जो भी अगर आपको लगता है कि आपके घर में डस्ट एंड उससे बचें। पिलोज, दीस आर द मेजर कॉजेस बिकॉज उसमें डस्ट माइट्स होते हैं, एवरी 2 साल में चेंज होना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक एंटी एलर्जेंस। एंड फाइनली यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, लोकल डॉक्टर फॉर दैट, टू जस्ट टू मेक श्योर ऑफ इट। ठीक है। डेफिनेटली उनका क्वेश्चन इसलिए होगा कि अगर हमें 2 महीने से हो रहा है, क्या हमें कोविड होने का चांस है इतना 2 महीने तक चले? यूजुअली कोविड नहीं होता इस तरह के सिम्टम्स के साथ। Right, hope we answered your question. There is one more question, Dr. Rathi, if you can take this question. He's asking that please tell me the precautions to be observed before reading daily newspapers at the present situation. Actually, what is the main precaution is कि one has to know about for panic. किसी को न्यूज़पेपर पे सारी एक्चुअली थोड़ा सा इस तरह की भी कई बार आती है कि जो निगेटिव न्यूज होती है वो ज्यादा हाईलाइट की जाती है उसे कैची बनाने के लिए, तो उन्हें पढ़ के किसी को भी पैनिक नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि वो सारी चीज उसमें भी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई प्रॉब्लम, तो इट इज बेटर टू गो नियरेस्ट हॉस्पिटल, गेट इट चेक इट डन, देन डिसाइड। Don't and second important thing कि don't do consultation with your relative or some phone consultation. If any problem, go to the hospital, consult a doctor, and then he will tell कि are you require admission or you is fit for home isolation or some extracellular test are required or not. ठीक है। एक कॉलर हैं लखनऊ से, उनसे बात करेंगे। लीला श्रीवास्तव जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, हमारा ये सवाल है कि ये जो न्यूज़पेपर होता है और फोन, इसको कैसे सैनिटाइज करना चाहिए? जी, आप लखनऊ से हैं तो हम डॉक्टर हिमांशु, क्या इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। Dr. Himanshu, if you can hear us, we got a caller from Lucknow, Leela Srivastav. She asked that how to sanitize phones and newspapers. Well, sanitization of newspaper, one of the things that you have to remember is there has been a huge hue and cry and lot of काफी लोग ये जो एक डर का भावना बैठ गया कि हर पेपर पे बहुत ज्यादा कोरोना रहता है। So, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि the studies have shown it does not stay for very long time on such fomites. पेपर से बहुत देर तक नहीं रहता। One of the best method is to leave them out. Most of the times आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं, they do a sanitization process before bringing it. You cannot spray anything on them. The fruits and vegetables can be properly washed. It is well known that all soaps and everything can kill corona. अब पहले हम लोग था कि सारे we were thinking about all chemical disinfectants. Necessary नहीं है. Hot water, soaps, even certain potassium permanganate, इन सबको यूज किया जा सकता है। दो chlorhexidine and potassium permanganate उतना अच्छा काम नहीं करता। Best method is to use something like a hot water to clean these vegetables and everything, leave them in the water. The COVID actually is very susceptible to temperature, above certain temperature. लेकिन डॉक्टर, अगर न्यूज़पेपर्स को लेकर के एक सवाल और पहले भी आया था, न्यूज़पेपर वो सैनिटाइज करते हैं लेकिन उसके बाद कई लोगों के हाथों से वो आता है। It will pass that. Directly आज तक पेपर टू पेपर ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। It doesn't transmit through that route. This is something people have to. The best method is once you have touched the paper, then you use hand sanitizer to clean your hands. That is the method to actually save yourself.
ताकि अगर बाय चांस किसी ने स्नीज किया या आपका जो पेपर डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी ने स्नीज किया तो दैट इज द मेथड. यू कैन नॉट क्लीन पेपर विद द थिंग. यू कैन लीव इट इन समथिंग लाइक बाहर आप फिर छोड़ सकते हैं बिकॉज ऑन पेपर इट डजंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. And also, Dr. Himanshu, we get questions on the use of sanitizers also. First question is, are they safe to use? Excess use of sanitizers is also bad, and also what kind of sanitizer should we use and how often we should use them? Well, that's a very important question. Sanitizers have their own pros and cons. मतलब उनके problems भी हैं. अगर आप सैनिटाइजर रेगुलरली यूज कर रहे हैं कंटिन्यूस, जैसे लोग कहते हैं कंटिन्यूस यूज, इट हैज अल्कोहल, 70% अल्कोहल होता है ऑल मोस्ट सैनिटाइजर्स में. कुछ में थोड़ा क्लोरेक्सिडिन और ग्लिसरीन भी मिला होता है, तो अभी चिपा रहता है. तो जो 70% अल्कोहल जब 6-8 बार करने के बाद उसमें एक फिल्म बन जाता है और उसमें जलन होने लगती है. कुछ लोगों को डर्मेटाइटिस होने के चांस रहता है. तो हर 5-6 बार यूज करने के बाद वन शुड एक्चुअली वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Even in normal times in hospitals, that is what we recommend. After using hand sanitizer for 4-5 times, अगर आपने अभी किया फिर 2 घंटे बाद फिर किया फिर तो आपको लगातार करने के बाद 5-6 बार आपको हाथ धोना चाहिए ताकि अल्कोहल का जो फिल्म है वो हट जाना चाहिए वहां से. दूसरा, कभी भी खाना खाने से पहले आपको ये हैंड सैनिटाइजर्स नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज दे कंटेन अल्कोहल. इफ यू आर गोइंग टू ईट, बेस्ट मेथड इज टू यूज सोप एंड वाटर. Okay. सिमिलरली अगर आपके हाथ में मिट्टी या कुछ लगा हुआ है देन वन शुड, या इस तरह सिक्रीशंस लगे हुए हैं, then automatically one should wash it well with soap and water. In some situations one should not be using alcohol sanitizers. Okay. The best sanitizer as such currently recommended for COVID is alcohol 70% होना चाहिए. And equally important, wherever you have basin, you should always wash hands with soap at least for 40 seconds or more. That is the thing. Third, एक और चीज याद रखना चाहिए कि जैसा हम men हैं, if they are shaving and everything and they use alcohol sanitizer, it touch, it will burn, it will start burning. Yeah. So make it a habit to, once you use it for 5-6 times, then go and clean it with water so that the film removes. And film के एक बार बन गया तो फिर वो काम नहीं करता. Okay. ठीक है. And also, what kind of sanitizers should we use? I mean, there are two kinds of sanitizers available in the market: gel-based and liquid. No, it should always be liquid based. See, the sanitizer should, आप जब खरीदते हैं आप घुमा के देखिए उसमें कितना % अल्कोहल है. It should have 70%. Should be minimum 70%. 70%. Then when you use it, you rub all the areas and you should, उसको लगा के करने के फिर धोना तो इमीडिएटली नहीं धोना चाहिए, उसको एयर ड्राई करना चाहिए, so that then only it works. अगर आपने सैनिटाइजर लिया उसके बाद उसमें थोड़ा उसके बाद करने के बाद पानी डाला तो उसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है. Then it won't work. So it has to be used, rubbed and air dried. You should allow it to dry with air, not even rub with cloth or something. Okay. ठीक है. डॉक्टर संतोष, एक सवाल आया है कृष्णा गुप्ता का. ये पूछते ही हैं कि किसी को अगर हर्पीज है, माउथ अल्सर है और साथ में ड्राई कफ भी है तो क्या उसको कोविड-19 टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर जरा भी सस्पेक्टेड है, टेम्परेचर हो रहा है, पेशेंट को ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका ड्रॉप कर रहा है, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट ये फील करता है कि खांसी इरिटेबल है, वो बहुत ज़्यादा आ रही है, वो बढ़ती जा रही है, तो इन सिचुएशन में उसको ज़रूर कोविड टेस्ट अपने डॉक्टर से संपर्क करके कराना चाहिए. लेकिन अगर कोई एलर्जी कंडीशन है जो कि बहुत दिन से चली आ रही है, फीवर नहीं है, पेशेंट एजमेटिक है, तो उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो जो रेगुलर अपनी दवाएं लेता है वो दवा लेते रहे. लेकिन अगर डॉक्टर जरा सा भी सस्पेक्ट करता है, स्पेशली इफ द डॉक्टर एडवाइसेस एक्सरे एंड एक्सरे शोज सम अनयूजुअल पिक्चर, देन द टेस्ट मस्ट बी ऑलराइट. And also, Dr. Santosh, I think we missed out his question when we introduced the guest, but he's asking again that from 21st May, I've got the problem of sore throat and cough also for the last 2 weeks, but I have no fever. Should I go for a COVID-19 test? I don't think that the test is required, but if there is some contact, history of contact, or the disease is of short duration and the treating doctor thinks that it is advisable, then otherwise going for the test, it is not, in my opinion, is advisable. ठीक है. डॉक्टर राठी, एक महत्वपूर्ण सवाल आया हुआ है क्योंकि अब हम अनलॉक के दौर में आ गए हैं और कई सारे
जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं, कई सारे रेस्टोरेंट भी कई जगह खुल गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल है नव्या ओम का, ये पूछते हैं कि कितने चांसेज हैं ट्रांसमिशन के सरफेस से, ऑर्डर्ड फूड से, पैकेजेस और डिलीवरी आइटम्स फ्रॉम आउटसाइड। दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ वरी एंड मेंटल टेंशन, इफ यू कुड प्लीज क्लेरिफाई। जो फोमाइट कॉन्टैक्ट है, इस तरह के कॉन्टैक्ट को फोमाइट कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसके चांसेस जो लिटरेचर के अकॉर्डिंग है 2 to 5% है, बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो एरोसॉल से पेशेंट के कांटेक्ट में आने से हैं। और बेस्ट थिंग टू अवॉइड फोमाइट कांटेक्ट के लिए है कि रिपीटेड हैंड वॉशिंग एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सैनिटाइजर। तो इसके लिए, इससे बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी चीज को आप टच करते हैं, डिलीवर्ड फूड को, तो आप उसके बाद अपने हैंड वॉश कर लीजिए। यू हैव नॉट टू पुट योर हैंड योर माउथ एंड नोज। आपको नाक और मुंह पे अपने हाथ नहीं लगाने, आईज पे नहीं लगाने बिफोर वॉशिंग। इट्स नॉट लाइक दैट कि स्किन से टच होके कोरोना हो जाता है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ मध्य प्रदेश से, वैभव पूछिए, डॉक्टर पांडे सुनिएगा इनका सवाल। सर नमस्कार, मैं टांडा से बोल रहा हूँ और मैं मेडिकल पे काम करता हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे पास दिन भर जो पेशेंट आते हैं सर्दी खांसी और गले में दर्द बुखार के, तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हमको इन्फेक्शन नहीं हो? और अभी तक कोरोना का हमारे गांव में एक भी केस नहीं आया है। नहीं, देखिए आप चूंकि हेल्थ केयर वर्कर हैं, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट जो आप बता रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम और बुखार, यही सिम्टम्स जो शुरुआती दौर में होते हैं कोरोना पेशेंट्स के होते हैं। लेकिन इससे आपको बचाव रखना है। देखिए कहते हैं डरना नहीं, मैं कहता हूँ डरना चाहिए। आप डरेंगे नहीं तो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। हैंड सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर हिमांशु ने बताया। हैंड सैनिटाइजेशन में सोप वाटर का कोई मैच नहीं है। इट इज द नंबर 1 टू यूज। जब सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं हो तो फिर आप एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ले सकते हैं। दूसरी बात, मास्क जरूर लगाइए। हिंदी में बोलेंगे जी, बोलिए। आप मास्क जरूर लगाएं। और मैं तो कहूंगा कि आप चूंकि हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप एटलीस्ट सर्जिकल मास्क या N95 मास्क को जरूर यूज करिए, एक बात। दूसरी बात, उस मास्क को यूज मत करिए जिसमें रेस्पिरेटरी होते हैं, जिसमें एक वॉल्व लगा होता है, उसको बिल्कुल नहीं यूज करना है। दूसरी बात, हम लोग प्रोसीजर करते हैं, जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट, हम लोग प्रोसीजर करते हैं तो चश्मे को जरूर लगाते हैं। ये तो मेरा रीडिंग ग्लासेस है, अदरवाइज आई यूज द ग्लासेस व्हिच प्रिवेंट फ्रॉम रेडिएशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम, बिकॉज आंख एक और सोर्स है कोरोना इन्फेक्शन का। तो मास्क, हाथ को धोते रहना, चश्मा लगाना, और नहीं तो शील्ड आती है आजकल, बहुत अच्छी फेस शील्ड्स आ रही हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को यूज करेंगे तो आई थिंक अब तक नहीं हुआ, आगे भी आपको कोविड के चांसेस बहुत कम है। बट प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जहां नहीं हुआ है अभी इस समय, वहां पे भी आने शुरू हो गए हैं केसेस, इसलिए ध्यान रखिए। डॉक्टर पांडे, एक सवाल यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज गवर्नमेंट की ओर से भी एक डायरेक्शन जारी किया गया है जिसमें N95 जो मास्क है उसको लेकर के ये कहा गया है कि उसमें वॉल्व के कारण जो है थोड़ा सा परेशानी है, तो उस मास्क का उपयोग ना किया जाए। इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दीजिए, क्या कुछ इसमें दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा, आधे मिनट या 1 मिनट। देखिए, मास्क बहुत जरूरी है। अब आती है ये बात कि सिंपल क्लॉथ मास्क, होममेड मास्क, दूसरा आता है सर्जिकल मास्क और तीसरा आता है N95। ये 3 कैटेगरी होती है मास्क की। सिंपल होममेड मास्क भी बहुत जरूरी है। आपको सोचिए, अगर सभी होममेड मास्क ही यूज कर रहे हैं तो ना आप इन्फेक्शन देंगे ना अगला इन्फेक्शन देगा, तो किसी को नहीं होगा। ये तो बात नहीं कि मास्क जरूरी है। दूसरी बात आती है सर्जिकल मास्क की, जो डॉक्टर्स हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं। सर्जिकल मास्क भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे भी बेटर होता है जो बिल्कुल फ्रंट लाइन, जिसको कोविड वॉरियर्स बोलते हैं, क्रिटिकल केयर में है, पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स में है, उनके लिए N95 मास्क होता है। जो मास्क में आप देखिए एक रेस्पिरेटर लगा होता है, जैसे वॉल्व लगा होता है, इट इज नॉट गुड मास्क। ये पोल्यूशन के लिए ठीक है, क्योंकि आप इसमें आप जो एयर एक्सहेल करते हैं वो सीधी बाहर जाती है और थोड़ी बहुत अंदर भी आती है। तो ये मास्क बिल्कुल सेफ नहीं है। इनफैक्ट कई हॉस्पिटल में नोटिस लगाया हुआ है कि जो भी N95 मास्क लगा रहे हैं जिसमें रेस्पिरेटर है, वॉल्व लगा हो, उसको हम अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो पब्लिक को भी यूज करना है साधारण तौर पे होममेड मास्क। हेल्थ केयर वर्कर्स जो फ्रंट लाइन नहीं है, सर्जिकल मास्क। जो बिल्कुल कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं उनको N95 मास्क बहुत जरूरी है विदाउट रेस्पिरेटरी वॉल्व। दिस व्हाट इज द नेशनल मास्क जो यूज कर रहे हैं हम लोग।
Okay, you can use N95 mask but without respiratory valve. Without respiratory, yes. Okay, and also there is one more question, Chandrasekhar. Dr. Pandey, if you can answer this question also. He is asking that what are the chances of transmission if one travels in the car along with a positive person for almost an hour and both were wearing mask throughout the journey but no physical contact. Other person has taken care of hand wash and the norms of social distancing. देखिए ये इट्स वेरी कॉमन सिनेरियो विद हेल्थ केयर वर्कर्स, बहुत कॉमन है ये। बट इसमें सबसे अच्छा क्या है, अगर आपका दोनों ने मास्क लगाया हुआ है तो चांसेस बहुत कम होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 2 to 5%। एक ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है, जितना प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट होगा उतने चांसेस ज्यादा होते हैं। कहते हैं 45 to 60 मिनट तक आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, अगर दोनों ने मास्क नहीं लगाए थे तो बहुत हाई चांस है, अगर आपने मास्क लगाया तो कम चांसेस हैं, अगर दोनों ने मास्क लगाया तो आई थिंक इट इज नेग्लिजिबल चांसेस टू गेट कोविड-19 इन दिस सिनेरियो। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सवाल सोशल मीडिया के जरिए आया हुआ है। इसमें एक सवाल पूछा हुआ है, ये कहते हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं क्या उनसे भी ट्रांसमिट हो सकता है कोविड-19? डॉक्टर संतोष। यस, डेफिनेटली। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स है, नोन सोर्स है, अपरेंट सोर्स है, जिससे ये पता लग जाता है कि इससे ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अगर वो मास्क लगाए हुए हैं तो दूसरों को ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर दोनों मास्क लगाए हुए हैं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं, तो चांसेस बहुत बहुत मिनिमल हो जाते हैं। बट डेफिनेटली रिस्क इज देयर इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड, नॉट पुटिंग ऑन द मास्क एंड इज talking or advising to persons who again are not putting on mask, very liable that they are getting infection. ठीक है, एक कॉलर जी, शिवांगी फ्रॉम झारखंड। जी शिवांगी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को 3 दिन से फीवर आ रहा है कंटिन्यू। उनका फीवर जो टेम्परेचर रहता है वो 101, 102, 103 ऐसे रहता है, और उनको और कोई सिम्टम्स नहीं है। क्या मुझे कोविड टेस्ट करवाना चाहिए? डॉक्टर राठी, इफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल। फीवर इज many time it is a first symptom, and although in COVID fever is not so much high, 103 and 102, but her husband definitely go for the test. Right, Shivangi, hope we answered your question. And also Dr. Rathi, there is one more question, that a lot of people are staying at home, they are not going to office, they haven't gone to office or gone out to party for a very very long time, and they have developed the gastric problems. What do you want to suggest them? Problem like which problems? Gastric problems. Gastric problem. Actually gastric problem mein what happens ki it's gastric problem is somewhat related to stress also. Okay. So if somebody is in stress, so it has been seen that there is a more gastric juice secretion, more gastric secretions. So they can simply take some antacids preparation, easily available Dizene, etc. And there should be proper timing of the food. Food should be taken at appropriate time, and particularly after the dinner, they should take a light walk, and there will be sleeping, different between sleeping and dinner at least 1 to 2 hours. So these problems can be controlled. And also they should exercise frequently? No, that thing is always good. Frequent exercise is always helpful, in not only in gastric and always in very many other things. ठीक है, तेज राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात सूरत से। डॉक्टर पांडे, इनका सवाल सुनिएगा। तेज राज बताइए। हाँ जी, जैसे डॉक्टर साहब अभी जैसे विटामिन सी लेने के लिए बोलते हैं कि भाई गर्म पानी में नींबू में आप दिन में 2-3 बार लीजिए। जी जी। तो जैसे हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जैसे नॉर्मल गर्म पानी में नींबू पीते हैं, आधा नींबू डाल के, तो वो मतलब ज्यादा पीने से अपने को कुछ नुकसान तो नहीं करता है? डॉक्टर नहीं, देखिए ज्यादा पीने से कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा मैंने देखा बहुत लोग इतने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि उनको गैस्ट्राइटिस हो रही है और एसिडिटी बहुत हो रही है। तो वार्म वाटर मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट जिसको बोलते हैं, दे आर रिच इन विटामिन सी, ये बहुत अच्छी चीज है। ये अपने को सबसे बड़ा मेंटली बहुत स्टेबल रखना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, और
3 स्टेप्स हैं। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि कॉमन सेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन सैनिटाइजर, मास्क एंड डिस्टेंसिंग। अगर इसको यूज करेंगे, अपना दिनचर्या को अच्छे से रखेंगे, तो आई थिंक ये जो वार्म वाटर ये सब हेल्प ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे आपको। ठीक है डॉक्टर राठी, एक सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं कि सर जैसा डॉक्टर ने बोला कि वायरस डजंट स्टे लॉन्ग, जबकि वायरस के बारे में कहा जाता है ये ना तो लिविंग है और ना नॉन लिविंग है, फिर ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली वायरस किसी सरफेस पे नॉन लिविंग है, पर जब सेल के कांटेक्ट में आता है, जब सेल में अंदर चला जाता है, देन इट्स बिहेव लाइक लिविंग, देन इट्स रेप्लिकेट। ठीक है, मतलब there should be some media for virus. Virus get attached a surface and a mucous membrane, and when it get entered, then it's become active and it replicate. And also Dr. Pandey, we were talking about taking vitamin C and citrus fruits, but a lot of people they have resorted to self medication, in the sense that they have started themselves taking vitamin C supplements and multivitamins also. Do you recommend that? Can we take ourselves the multivitamins and vitamin C supplements? देखिए मेडिकली आई फील कि अगर आप विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, जो लोग जिंक ले रहे हैं, इन सब का अगर आप सोर्स देखें तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ये। आप अगर अच्छी मात्रा में यू टेकिंग फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस, तो आपको इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड डाइट, व्हेन वी से गुड डाइट, गुड लो कैलोरी डेयरी प्रोडक्ट्स, गुड फ्रूट्स, good vegetables, yoga, pranayam, exercise, and all the precautions which have been told till date by various forums and doctors, I think ये लेंगे तो supplements लेने की additional जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। Also we have a caller from Jharkhand, Ankit Anand जी। अंकित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मुझे ये जानना था, जैसे मुझे 3-4 दिनों से मुझे अपने गले में दर्द हो रहा है राइट साइड में, जिसके कारण मैं अगर हार्ड फूड खा रहा हूँ तो मुझे गले से लेके ईयर तक पेन हो रहा है, राइट ईयर तक। तो क्या करना चाहिए इसमें? कोविड टेस्ट करवाना चाहिए या संतोष? डॉक्टर संतोष, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हाँ, मैं जुड़ा हूँ जी। आप देखिए, अगर जवाब देना चाहिए। ऐसी गले में ट्रबल हो रही है तो उस ट्रबल के लिए आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि दिन में 3-4 मरते गुनगुने पानी से गार्गल कर लीजिए, है नी। कोई एंटी एलर्जिक ले लीजिए, कोई एक पेन किलर ले लीजिए, है नी, लाइक पैरासीटामॉल वगैरह, और इससे आराम मिल जाएगा। अगर ये खांसी आपकी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तब फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करता है। यूजुअली इट इज़ एलर्जिक, so many allergens are going in our body every time. So just have a gargle and just throw them out and it will be relieved. So there is nothing to be worried. I think everybody, in my opinion, must do the gargle in the morning hour when gets up from the bed and while going to the bed after the toothbrush. Right, these are very precautionary things so that the viral load in our throat, whatsoever allergen or viral are there, they are just thrown out. And just having these minor symptoms, but should not be worried because this often everybody gets. ठीक है डॉक्टर हिमांशु, 2 सवाल हैं। मनिका तोमर और क्षितिज शर्मा हैं। दोनों पूछते हैं कि क्या कार के अंदर जब बैठे हों मास्क पहनना चाहिए, और साथ ही साथ सवाल ये है कि अंडों को कैसे सैनिटाइज करके खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? It doesn't make any difference. All these things were actually propagated initially, और अब काफी there is enough data which shows that इसमें कोई फर्क नहीं। You just need to maintain cleanliness of the egg. अंडों की जब पूछ रहे हैं तो अंडों को धो के उसके बाद आप आराम से खा सकते हैं, irrespective whether corona हो या ना हो। Even then you should be doing, because actually eggs are known to cause more of salmonella infection. And one should always be careful about that. उसके बारे में वैसे भी सुरक्षा रखना चाहिए। उनको आराम से धो के they should be properly cleaned, washed, and then they should be, then one should actually go for consuming. आपका दूसरा सवाल क्या था? कार के अंदर मास्क पहनना चाहिए क्या? Well, अगर आपके पास अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो फिर तो डेफिनेटली मास्क पहनना चाहिए। अगर एक अकेले हैं तो फिर भी जरूरत नहीं है। सिंगल अगर आप राइडर तो डेफिनेटली, because car is a closed space
एंड स्पेसिफिकली अगर आप इस गर्मी में एयर कंडीशनिंग चला रहे हैं तो इट इज अ प्लेस, अगर किसी ने चाहिए तो एरोसलाइज करके उसी एरिया में रहेगा, अब तो मैंडेटरी पहनना चाहिए। So you are saying that we don't need to open the mirrors of the cars? We don't need to open the windows of the cars? No, I'm not saying that. I'm saying ज्यादातर लोग इस गर्मी में एसी चला के रखते हैं, तो if you are doing that and if there are more than one person, one should always wear mask. इवन अगर विंडो खुला भी है तो भी अगर 2 लोग से ज्यादा मोर देन सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, वन शुड वेयर मास्क इररेस्पेक्टिव ऑफ दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विंडो खुला तो निकल जाएगा, देयर इज एन एयर फ्लो का वो होता है, कर्टन होता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी ने खांसा तो तुरंत बाहर निकल जाएगा, तो इट इज मैंडेटरी, देयर इज मोर देन वन पर्सन ही शुड वेयर मास्क। डॉक्टर राठी, एक सवाल, ये काफी लोग इस सवाल को पूछते हैं कि एटीएम जाना कितना सुरक्षित है? डॉक्टर राठी, एटीएम मतलब ऑलमोस्ट एवरी एटीएम प्रोवाइडेड द सैनिटाइजर। इफ अगर नहीं मिल रहा है तो आप गार्ड से बोल दीजिए, once sanitize your hand then you can use ATM, no issue। यानी कि कोशिश करें कि एटीएम में आप अपना काम करने से पहले भी हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए और जब आपका काम हो जाए उसके बाद भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। also Chandrasekhar, we are running out of time, so probably this will be our last question. Dr. Himanshu, if you can take this question, he's asking, it's very hot these days and my mother tells me to take hot liquids because of COVID-19 to take self precautions, but I don't feel like taking them. What should I do? Is it mandatory to take hot liquids? No, it's not. ये जरूर है, सब लोग कहते हैं कि गर्म कीजिए, गर्म हाथ काफी जाएगा, गर्म गुनगुना पानी पीजिए। When you say गुनगुना, it should something like body temperature, little bit above that, first of all, ये hot नहीं। दूसरा चीज ये है कि जब हम हॉट लिक्विड लेते हैं तो people have to understand the virus lives in throat and in the lungs, not in the stomach, और कुछ जो आप हॉट वो पेन वो मर जाएगा उसमें। Yes, but we do suggest कि गले में खराश किसी को है तो you do warm saline gargles so that it kills the saline and the warmth kills the virus in that area। बाकी आपको वार्म हॉट लिक्विड पीने से उसमें कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आता, बट यू कैन टेक रूम टेम्परेचर लिक्विड्स which is fine, you don't need to take very cold liquids, that's what it is। ठीक है, अब हम अंतिम सवाल डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाह रहे हैं। दरअसल आप नोएडा में भी हैं और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि इलाहाबाद से भी आप लगातार कांटेक्ट में रह रहे हैं, और जिस तरह से डॉक्टर संतोष बोल रहे थे कि अब लंबा टाइम हो रहा है, उस वजह से लोगों के अंदर में लापरवाही भी बढ़ रही है, इस सब के बीच अब कैसे अब डील करना चाहिए? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है इस समय। सबसे सेफ थे जब हम लॉकडाउन में थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, सड़कों में भीड़ नहीं थी, एवरीबॉडी वाज सेफ। ये समय सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने का, एहतियात बरतने का है। और मुझे लगता है कि एक अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोलता कि हैंड सैनिटाइजेशन एक होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जगह आई वुड हैव चेंज टू फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि इस दौरान काफी लोग सोशली दूर भी हुए लोगों से। तो ये 3 चीजें प्लस सोशली कनेक्ट रहते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए, कोई दिक्कत आए तो डॉक्टर से सलाह लेते हुए 1-1.5 महीने, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुमान है एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, कि अगले 1.5-2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नीचे जाने लगेगा और वी विल बी फ्री ऑफ कोविड। डॉक्टर पांडे, जो बड़े शहर हैं जैसे नोएडा की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो फिर भी लोग पालन कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर संतोष बता रहे थे कि कानपुर देहात की बात करें या कानपुर की बात करें, वहाँ पे लोग थोड़े लापरवाह ज़्यादा हो गए हैं। डॉक्टर संतोष, अंतिम कमेंट आपसे ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे माहौल में, आप क्या कुछ करना चाहिए? इस संबंध में मैं चाहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। नंबर 2, जहाँ सोशल प्लेसेस हैं, जो भी उसका ओनर है या देखने वाला है, वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले कि जो भी अंदर जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल है या मॉल है, तो जो भी एंट्री कर रहा है वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके जाए। नंबर 3, जहाँ तक हो सके एल्डरली पर्सन और बच्चों को ना ले जाएं। नंबर 4, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, कहीं भी जाएं लेकिन 3 चीज़ों का ज़रूर पालन करें। नंबर 1, हैंड सैनिटाइज़र, N95 मास्क,
N95 mask, and number 4, as far as possible, social distancing. I agree, social distancing, as has been said, not possible to have a distance of 6 feet between, but they should not crowd one over the other. That is the situation I am seeing in so many places, like in OPD, in the hospital, going for the drug, in the drug counter, at the reception counter. These things I request with my folded hand to all my population, all my masses, that they should take precaution. The doctors, the administration, they are taking their own care. I think they should be